Welcome back student, a brand new class of computer fundamental. In this class we are going to revise our various input device. So let's start with keyboard. A keyboard, the one of the most commonly used input device. It looks like a typewriter and it is used to enter command and data into the computer. A standard keyboard has 104 to 108 keys. So we have 9 types of keys. The first one is alphabet keys. The alphabet keys are from A to Z. It can be either small or lowercase or it can be in uppercase. From the next is numerical key. Numerical key is from 0 to 9. The function keys, they are from F1 to F12. Caps lock key. With the help of this key we can enter data capital. We can write the character in uppercase if the cap lock is on. The spacebar key. Spacebar key used to make a space between two characters. Shift key. With the help of this key we can use multiple functions, like if we use shift key with A we can control A, shift A. We can use various keys that appear above the numerical keys. So we can use shift key. With the help of this key we can enter these keys, like as we see in our keyboard we have a key called 8, numerical key 8, and the above the 8 we have a star. If we want to enter star or we need to press the shift, so then we use shift key. Enter key used to enter a new line or insert a new line. Then arrow key used to go in 4 directions, like up, down, left and right. So with the help of keyboard we can enter the data into computer. So this is our first and most important input device. The next one is mouse. A mouse is a pointing device. It controls the movement of cursor. It is used to select, open, execute and delete any item. A mouse have 2 or 3 types of button. The mouse can perform the following tasks. We can use mouse for clicking, single click. We can use mouse for double click. We can use mouse for right click, and we can use mouse for dragging, like this. Here I can drag the page up and down. So we have basically 3 types of mouse. The first one is mechanical mouse, the second one is optical mouse, and the third one is wireless mouse. In mechanical mouse we have a small rubber ball at the bottom of the mouse. जो जैसे माउस को हिलाएंगे लेफ़्ट और राइट अप डाउन करेंगे, द रबर बॉल जो होती है मूव करेगी एंड द माई कर्सर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द बॉल. द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल माउस. ऑप्टिकल माउस इज ए बीम ऑफ लाइट दैट इज अंडर साइड. तो मैकेनिकल माउस में क्या होता है, रबर बॉल होती है, लेकिन ऑप्टिकल माउस में रबर बॉल की जगह के आगे मेरे पास एक लाइट बीम आ गई है. लाइक जो आजकल जितने माउस आते हैं ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस ही होते हैं मेरे पास मैकेनिकल माउस जो आजकल हम यूज़ नहीं करते. द नेक्स्ट इज वायरलेस माउस. वायरलेस माउस इज नॉट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. दे यूजली वर्क बाय द रेडियो फ्रिक्वेंसी. देखिए वायरलेस माउस में क्या है, लाइक इट्स नेम कि हम इसमें क्या करते हैं, वायर को यूज़ नहीं करते हैं. तो बेसिकली एक ट्रांसमीटर हम यूज़ करते हैं, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज के साथ जो है काम करता है. द नेक्स्ट इज लाइट पेन. अ लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस. It is used to choose and display option on the screen. It selects the option by detecting the light coming from the point of the light pen. It is used to draw anything directly on the screen. तो लाइक अगर मुझे कोई भी चीज़ बनानी है पेन के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं ना, माउस के साथ ही हम काम. लेकिन जैसे मेरे पास कुछ डिवाइसेज होते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोई चीज़ जो है ना अपने पेन के साथ अपने बोर्ड के ऊपर. देन वी यूज़ लाइट पेन. सो द वेरियस एडवांटेज ऑफ लाइट पेन. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन. इट इज़ बेटर suited to artist and design work than mouse. We can use light pen to directly draw right on the screen. There is no need to flat surface. It does not need any special screen. तो बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल स्क्रीन है मेरे ऊपर, उसके साथ हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. सेम माउस की तरह ही काम कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इसके साथ जो काम करना होता है वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि माउस के साथ हम ड्राइंग का वर्क जो अच्छे से नहीं कर सकते हैं, या लिखने का काम हम अच्छे से नहीं कर सकते माउस के साथ.
लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन भी हम क्या कर सकते हैं, एक फ्री हैंडली लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल पेन के साथ लिखते हैं. इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट वाइल ड्राइंग. अ लाइट पेन इज इजली डैमेज्ड एंड इफ वी यूज इट लॉन्गर टाइम इट कैन. बेसिकली क्या है, सिंपल सा पेन है, जैसे हम पेन को ज़्यादा देर पकड़े रखते हैं तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है ना, मेरा हाथ दर्द करने लग पड़ता है, तो सेम चीज़ आ जाती है. दूसरा चीज़ आता है ड्राइंग. देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हम इसके साथ ड्राइंग बनाएंगे, हम फ्री हैंड में बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें. तो दैट्स वाई वी यूज दिस थिंग एंड दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. द नेक्स्ट वन इज बारकोड रीडर. These devices are generally available in supermarkets, bookshop, etc. Barcode reader is a photoelectric scanner that reads the barcode or vertical zebra strip mark printed on the product container. तो बेसिकली होता है कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसके पीछे जो होता है बारकोड बना ही होता है, तो उस चीज़ को रीड करने के लिए हम एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर होते हैं. ज़्यादातर इस डिवाइस को हम कहाँ पे, सुपर मार्केट्स हो गई, हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, हम वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं. तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. तो बारकोड रीडर आर यूज इन सुपर मार्केट्स एंड इट इज़ वेरी फास्ट एंड रिलायबल मेथड ऑफ स्टोरिंग द डेटा. बट इसका ड्रॉबैक क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर हम कोई रीडर, इसमें रीड राइट की फैसिलिटी नहीं है. जो चीज़ बनी पड़ी है वो वैसे उसको स्कैन कर सकता है. ये अगर मेरे बारकोड में थोड़े भी स्क्रैचेस पड़े हुए हैं तो ये उस चीज़ को रीड नहीं कर सकता है. हम ज़्यादातर देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादा सुपर मार्केट्स हैं या नॉर्मल जहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं. बेसिकली प्रोडक्ट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसे हम. सो द नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन कैन बी यूज टू इनपुट द साउंड. अ माइक्रोफोन डिटेक्ट द साउंड and electrical signal is transmitted to computer. Special hardware we use to convert the analog signal into digital signal. तो बेसिकली माइक्रोफोन का क्या काम है, जैसे मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ उस चीज़ को मैंने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, माइक्रोफोन चाहिए होंगे. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डेटा ना, बट व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी टॉक इट इज़ इन एनालॉग फॉर्म. सो वी नीड सम स्पेशल हार्डवेयर दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट this digital analog signal into digital signal. So we can use microphone to record the sound and it is very easy to use. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आजकल हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग माइक्रोफोन टू टाइपिंग द डेटा टाइप फॉर टाइपिंग वर्क, बट द एक्यूरेसी ऑफ द टाइपिंग इज लिटिल बिट लो. सो एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन वी यूज द साउंड फाइल इट टेक लॉट ऑफ स्पेस in our computer. So this is our sound. The next is joystick. A joystick is an input device used to play games. It is a stick having spiral valve both of its upper and lower, and it is used to computer aided. बेसिकली जॉयस्टिक क्या, मेरे पास एक गेमिंग कंसोल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे सिंपल सी बात करते हैं, जैसे गाड़ी का गियर होता है, सेम चीज़ होती है मेरे पास जॉयस्टिक पर. हम इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं गेमिंग में, तो वो चीज़ आ जाती है हमारे पास. द नेक्स्ट इज स्कैनर. जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है स्कैनर. स्कैनर इज इनपुट डिवाइस. इट इज़ यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर. It translates the paper document into electronic form that can be stored into computer. A transfer of image directly into computer. It is attached to the computer by cable and controlled by the software. तो अगर कोई पिक्चर है, लाइक मैंने किसी पिक्चर फ़ोटो है मेरे पास, उसकी मैंने कोई सॉफ्ट कॉपी बनानी है, सो वी नीड ए स्कैनर, सो दैट स्कैनर कैन स्कैन द कॉपी and copy this thing into computer. So we have two type of scanner. The first one is handheld scanner and the second one is flatbed scanner. तो handheld scanner बेसिकली क्या है, जैसे मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस ही होता है, जैसे हम बोल सकते हैं बारकोड रीडर है मेरे पास, ये बारकोड स्कैनर है. तो बारकोड स्कैनर का काम क्या होता है, एक छोटी छोटी चीज़ को क्या करता है, वो स्कैन करता है जैसे बारकोड. तो सेम हैंड स्कैनर का भी काम क्या है, मेरे पास सिंगल पेज को स्कैन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें जब मैंने इस पेज को भी स्कैन करना होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उसे ऊपर नीचे ड्रैग ड्रॉप करना पड़ता है, छोटा डिवाइस होता है. द नेक्स्ट वन इज़ फ्लैटवेट. फ्लैटवेट स्कैनर कौन से होते हैं, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं. दे आर एक्सपेंसिव बट द बेनिफिट ऑफ दीज स्कैनर्स आर इट कैन स्कैन द पेज इन सिंगल पास. एक बारी में सारा के सारा पेज को क्या कर देता है, ये स्कैन कर देता है. द बेसिक एडवांटेज क्या है इसका, जो द मेन एडवांटेज ऑफ स्कैनर इज ना, इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड स्कैन हाई क्वालिटीज ऑफ इमेज. इवन इट कैन स्कैन ओल्ड मटेरियल. ओल्ड पेपर भी, अगर मेरे पास पुराना कागज़ भी होते हैं तो उनको भी क्या कर देते हैं, आराम से स्कैन कर देते हैं. द ड्रॉबैक इज, देखिए सारी चीज़ डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ इमेज. इफ द क्वालिटी इज नॉट गुड द स्कैनिंग इज नॉट गुड. सो दीज आर अवर स्कैनर. द नेक्स्ट इज MICR.
MICR is magnetic ink character recognition, a special ink containing iron oxide that is used since the recognize certain size, they're accurate. बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में हम सबसे ज़्यादा MICR को यूज़ करते हैं। जो मेरा चेक होता है, चेक के नीचे एक स्पेशल इंक के साथ क्या होता है, कुछ चीज़ लिखी होती है, एक स्पेशल फॉर्मेट में चीज़ लिखी होती है, तो उसको रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज डिवाइस कॉल्ड MICR। देखिए अगर, क्योंकि देखिए बैंक में अगर मेरे पास कोई टेक्निकल डिवाइस नहीं है स्कैन करने के लिए, उन चीज़ों को रीड करने के लिए, तो चेक्स को पास करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ MICR वी कैन ईजिली और प्रोसेस्ड चेक एट वेरी स्पीड। दे आर वेरी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इन टुडे लाइफ, है ना, क्योंकि सबसे आजकल हम बहुत ज़्यादा चेक का सिस्टम यूज़ करते हैं। बट द मेन थिंग इज़ जो होती है ना, जो मेन चीज़ है, टेक्नोलॉजी कॉस्टली है एज़ पर अदर टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा एंट्री, क्योंकि देखिए स्पेशल डिवाइस चाहिए, स्पेशल लिंक चाहिए, स्पेशल फॉर्मेट चाहिए, सो दैट हर किसी के लिए नहीं है। इट इज़ स्पेसिफिक यूज है इसका कहाँ, बैंकिंग सेक्टर में। सो द नेक्स्ट इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। It is used to reading the text from paper and translate the image into computer and manipulate an OCR system enable you to take a book or magazine article and feed it directly into the electronic। अब देखिए कोई बुक मैंने उस चीज़ को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, मैंने कंप्यूटर की फॉर्म में रखना है, मैंने अगर कंप्यूटर में कॉपी करके रखना है, देन वी यूज OCR। OCR बेसिकली क्या करता है, मेरे पूरे के पूरे टेक्स्ट वगैरह को क्या करता है, इमेज में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो उससे फ़ायदा ये है मेरे पास कि मैं पूरी की पूरी चीज़ें, मेरे पास पुरानी बुक्स होती हैं, रेयर बुक्स हैं मेरे पास जिनको ख़राब हो रही हैं, तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, OCR के साथ क्या कर सकता हूँ, स्कैन कर सकता हूँ, तो यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली OCR में सबसे प्रॉब्लम आती है ना, जो हैंड रिटन राइटिंग होती है, जो मेरे हाथ से चीज़ लिखी होती है, उसको स्कैन करने में से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं होता है, सो वो अच्छे से रीड भी नहीं हो पाता है। दैन द नेक्स्ट इज टच पैड। टच पैड इज ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रैक पैड। तो बेसिकली टच पैड क्या है, मेरे को हम बोल सकते हैं लैपटॉप के अंदर जो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, वो मेरे पास क्या एक तरह से टच पैड की तरह, टच पैड ही है मेरे पास, ट्रैक पैड बोल सकते हैं हम इसे, कि माउस का काम करता है उसके अंदर। तो जो लैपटॉप के अंदर पैड बना होता है जो मेरे पास, जिससे हम फिंगर के साथ स्कैन करते हैं, फिंगर के साथ उसे हम ड्रैग करके हैं, जिसके ऊपर जैसे हम फिंगर रब करते हैं, मेरा जो स्क्रीन पे पॉइंटर होता है वो उसी तरह से मूव करता है, तो दैट डिवाइस कॉल्ड अ टच पैड। बट द मेन बेनिफिट ऑफ टच पैड इज कि देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस, इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड इट इज़ वेरी आइडियल और वेरी यूज़फुल फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस, है ना। लैपटॉप जैसे डिवाइस के लिए अगर मुझे एक्स्ट्रा माउस लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर मेरे पास क्या उस पर ट्रैक पैड लगा हुआ है। बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थिंग इज इट इज़ टच पैड आर एक्सपेंसिव, बिकॉज हम इसे स्पेसिफिक एक डिवाइस के साथ ही यूज़ कर सकते हैं जिसे हम लैपटॉप बोलते हैं। एंड द सेकंड है इट रिक्वायर प्रैक्टिस एंड स्किल टू कंट्रोल। मतलब एक तरह से टच चीज़ को चलाने के लिए मुझे काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि उसी हिसाब से मेरा माउस का पॉइंटर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सो वी नीड सम प्रैक्टिस फॉर दिस पर्पस। द नेक्स्ट इज अ टच पैड आर फाउंड इन स्पेसिफिक डिवाइस लाइक लैपटॉप। वही आगे बात की एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसे हम एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ ही यूज़ करते हैं, बाकी हर जगह तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। द नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा स्टोर डिजिटल फोटोग्राफ ऑन द मेमोरी कार्ड एंड दीज इमेजेस कैन ईजिली ट्रांसफर इनटू कंप्यूटर बाय व्यूइंग और एडिटिंग। बेसिकली डिजिटल कैमरा का क्या काम है, इट इज़ यूज्ड टू click the photograph and we can easily transfer this photograph into our computer। अब देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, when we click the photograph using digital camera we can view the photo, okay, if the photo is good then we can store this photo and if the quality of photo is not good we can delete, है ना। तो ये चीज़ आ जाती है, अगर मैं उसी टाइम उस चीज़ को देख सकता हूँ, अगर मेरे पास फ़ोटोज़ अच्छी है तो उसे मैं कंप्यूटर में स्कैन करके कंप्यूटर में कॉपी करके रख सकता हूँ, लेकिन अगर फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। सो वी हैव सम एडवांटेजेस, क्योंकि देखिए द एडवांटेज ऑफ डिजिटल का प्रोड्यूसिंग द फोटो इज मच क्योंकि, है ना, क्यों काफ़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मुझे फ़ोटो डेवलप नहीं करनी पड़ती, मुझे जैसी चीज़ है वैसे दिख जाती है। अनवांटेड फोटो इमेजेस कैन ईजिली बी डिलीटेड फ्रॉम मेमोरी कार्ड। जो फ़ोटोज़ मेरे काम की नहीं है उन्हें मैं आराम से डिलीट कर सकता हूँ, because of image are in digital form so it is easy to copy and we can make multiple copies, and
digital image can improve and edit easily because everything is in digital form, so we can easily editing these photos. The major drawback of this digital camera is not all digital camera produce good images. क्योंकि देखिए हर डिजिटल कैमरा जो ज़रूरी नहीं कि मेरे पास अच्छी फ़ोटो ही देगा. इट डिपेंड अपॉन कॉस्ट एंड आल्सो डिपेंड अपॉन फोटोग्राफर. जो कैमरा यूज नीड लिटिल बिट कंप्यूटर स्किल. देखिए जो बंदा कैमरा डिजिटल कैमरा यूज़ कर रहा है उसे कंप्यूटर स्किल्स भी आने चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम वो कर ही नहीं सकता है. क्योंकि सारा का सारा काम कहाँ होगा, मेरे पास कंप्यूटर के अंदर होगा. उसे कंप्यूटर चलाने आना चाहिए. द नेक्स्ट इज वेब कैम. अ वेब कैम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ web camera. A webcam is an input device because it captures a video image of the screen in front of it. It can either built into the computer or it connected through USB cable. सिंपल कैमरा जो हमारे पास जो मेरे लैपटॉप में लगा होता है, अगर हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो इट इज़ इनबिल्ट एंड इन केस ऑफ कंप्यूटर वी नीड टू कनेक्ट थ्रू द डेटा केबल. तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ. क्योंकि देखिए अलाउ लॉन्ग डिस्टेंसिंग फेस टू फेस कन्वर्सेशन. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी कंडक्टेड वेरी चीप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. पेरेंट्स कैन गिव आइज ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. नाउ द डिसएडवांटेज, द इमेज एंड वीडियो क्वालिटी कैन समटाइम बी पुअर. दे कैन नॉट हैव देयर ऑन स्टोरेज फिक्स्ड पोजिशन, सो इट कैन नॉट बी मूव अराउंड. तो सो दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ. So these are some advantage and disadvantage of web camera, है ना. So the next topic is our output devices. The output devices है ना, तो as we discussed in yesterday we have two type of output device. The first one were hard copy devices and the second is soft copy devices. The hard copy devices are those devices that gives output on paper like printer, and the second is soft copy devices that produce output on some device like monitor. So we start with monitor. It is the main output devices of the computer. A monitor is an output device which is used to produce soft copy output. It is also known as visual display unit. It forms image from tiny dots like particles that we call pixel and that are arranged in rectangular form. Basically होता क्या है, जो मेरे पास मॉनिटर है, क्या है मॉनिटर के अंदर क्या होता है, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस. तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ मुझे दिखती है, जो भी चीज़ डिस्प्ले होती है, तो कोई भी इमेज है, इमेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल डॉट्स एंड वी कैन कॉल पिक्सल्स, है. जो दी स्मॉल डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल व्हेन लॉट मोस्ट ऑफ द पिक्सल. और ये पिक्सल जो होते हैं इतने इकट्ठे होते हैं कि ये क्या करते हैं, एक मेरे पास इमेज बना के रख देते हैं, एक इमेज बना देते हैं. इतने इतने इकट्ठे अरेंज इस तरह से किए जाते हैं. सो देयर आर मोनीटर्स. द फर्स्ट इज CRT मोनीटर्स. CRT मोनीटर्स लाइक अवर जो हमारे पास पुराने टीवीज़ थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे हमारे पास, है ना. CRT स्क्रीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड पिक्सल्स. द स्मॉलर द पिक्सल इज बेटर द इमेज क्लैरिटी एंड रेजोल्यूशन. द CRT monitors are large, bulky sized and it has high power requirement. The some advantages of CRT monitors are it has better brightness, it is cheap in cost and more durable. But the disadvantage of it is bulky and large and it need more power. So this is our CRT monitor. The next one is LCD. We have some different things now, LCD, LED, TF, plasma, all these comes under the TFTs. क्योंकि सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मेरे पास TFT के अंदर, थिन फ्लैटरॉन टीवी जो हम बोलते हैं. द फर्स्ट इज LCD. दिस इज यूज्ड इन लैपटॉप notebook size PC. A LCD is thin, flat and lightweight screen made up of any number of color or monochrome pixel. It is very small in size and it consumes very small amount of power. So the advantage, it is very small, it is light in weight, it has low power requirement. So these are some advantages of LCD. Now the disadvantage is it has low brightness and it is expensive as compared to CRTs and it requires व्यू एंगल ऑफ ऑलमोस्ट 90 डिग्री. क्योंकि LCD में सबसे जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो उसका व्यूइंग एंगल था. अगर मैं बिल्कुल उसे सामने से देखता हूँ तब तो मुझे उसकी पिक्चर अच्छी दिखती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो जाता हूँ तो मुझे उसका व्यू जो होता है, पिक्चर का व्यू जो होता है वो अच्छे से नहीं दिखता था. द नेक्स्ट इज LED, लाइट इमिटिंग डाइकोड्स.
It is an electronic device that emits light when electrical current is passed through it. LED contain multiple small bulbs and the content are displayed by turning the bulb on or off. At present, it is used in TV, desktop and PCs extra. All these things are in LEDs are used in all these, like TV, we have LED TV, desktop PC, the screen of the desktop PC, the screen of laptops, or are used use the principle of LEDs. So we have some advantage of LED. It is light in weight, so it can be used portable device. It requires less power and small in size. The viewing angle is better than or larger than LCD. What the disadvantage? It has a low power, low brightness, but it is better than LCD. And the next is plasma. The next is it is expensive compared to CRTs, so it is difficult to maintain. Basically था जो चीज़ जितनी छोटी होती है उसको मेंटेन करना तो उतना ही मुश्किल होता है. The next is plasma. It contains neon gas in between two plates of the screen that place of liquid crystal of LCD. It is large. It has a large viewing angle, but it is expensive than. Basically क्या है ना, CRT को रिप्लेस किया किसने? TFTs ने. TFTs में क्या हुआ, मेरे पास स्क्रीन का क्या हो गया, पतली हो गई. और उनके तब लेकिन जो मेरे पास TFTs थी उनके मेनली फ़र्क पड़ा व्यूइंग एंगल में, जो व्यू करने का एंगल था. LCD में मेरे पास व्यूइंग एंगल थोड़ा अलग था, LEDs में अलग था, प्लाज्मा में अलग था. अब मेरे पास नई काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. मेरे पास कर्व स्क्रीन आ गई हैं, मेरे पास स्मार्ट टीवीज़ में LEDs आ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं. लेकिन ऑल दिस कम्स अंडर द TFTs. सो द नेक्स्ट इज अवर a printer. So printer is our hard copy device because it gives output on a paper. So we have basically two type of printer. The first is impact printer. Under the impact printer we categorize this printer into two parts, the character printer and line printer. And then we have a non-impact printer. We have basically three types of non-impact printer. The first is laser, inkjet and thermal. So like name specify, like the character printer, these are work on basically characters. Everything that we type and make a print, that is in form of character, and the line, it print line by line. So we have basically two types of printer. Impact printer, these printer use the electromechanical mechanism, and impact printer refer all those printer whose print had touch with the paper. This mechanism use hammer or pen strike against the ribbon and paper to print the text or image. बेसिकली क्या था मेरे पास, जो था ना, जो मेरे पास इम्पैक्ट प्रिंटर थे उनमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली बेस्ड ऑन हैमर टेक्निक. क्योंकि इसमें जो भी चीज़ होती थी ना, एक इस तरह हम हैमर से किसी पे वो करते हैं, अटैक करते हैं, किसी चीज़ पे हैमर मारते हैं, सेम वैसे ही होता था ये चीज़ जो थी हमारे पास. सो वी कॉल दिस हैमर, है ना. क्योंकि जैसे टाइपराइटर होते हैं हमारे पास, टाइपराइटर में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती थी ना. सो इन केस ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है जब भी हम इससे टाइपिंग करते थे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी नहीं होती थी. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. द फर्स्ट इज करैक्टर प्रिंटर and the next is line printer. A character printer are print single character at a time. They are low speed printer. The printing speed lies range of 10 to 600 character per second. Under the character printer we have two type of printer, the variable printer and dot matrix printer. The next is line printer. A line printer or impact printer are used to produce high volume of paper output. These printer print one line of the text at a time. तो देखिए the main difference between character and line, that their output. In case of character printer, it print a single character at a time, but in case of line printer, it print a single line at a time. So we have a two type of line printer. The first is drum printer and the second is chain printer. Now we have a non-impact printer. These printer print the character without strike against the ribbon on to the paper and onto the paper called non-impact printer. This printer use ink and special electronic machine producing the output. Basically ये non-impact printer में ज़्यादातर हमारे पास क्या हुआ, इंक का कंसेप्ट आ गया. There is no need of hammer, है ना, कि स्ट्राइक करेगा उसके ऊपर. बेसिकली इसका काम क्या था, ये इंक को क्या करता, स्प्रेड करता है पेज के ऊपर. तो ज़्यादातर हम लाइक वी आर यूजिंग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दीज डेज, है ना. और जो मेन एडवांटेज था इसका, दे आर नॉट नॉइसी, इनकी आवाज़ नहीं होती. लेकिन इन केस ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर दे आर वेरी नॉइसी, द क्वालिटी इज़ वेरी लो, बट इन केस ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्वालिटी इज़ वेरी हाई. सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स.
So it stands for DPM, DMP. DMP stands for dot metric printer. This printer can print each character as a pattern of dot. Like हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ना, जो मेन एग्जांपल है डॉट मैट्रिक का। हम बैंक में जाते हैं या हम LIC ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे हम जब भी हम प्रिंट निकालते हैं, जो हमें प्रिंट निकाल के वो देते हैं, वो प्रिंट किस चीज़ का होता है मेरे पास? डॉट मैट्रिक प्रिंटर का होता है ज़्यादातर। क्योंकि दूसरी चीज़ उसमें देखने वाली होती है कि उसके ऊपर जो प्रिंट निकाला होता है, जो मेरा कोई भी शेप बनी होती है करैक्टर की, वो डॉट्स में बनी होती है। सो एट दैट प्लेस वी यूज द डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दे आर वेरी चीप एंड फास्ट। इन केस ऑफ अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, लो कॉस्ट बहुत कम होती है। जो भी चीज़ हम इसमें प्रिंट करते हैं, ग्राफिक्स जो उतने अच्छे नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल से ग्राफिक्स हम इसमें क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। बट द ड्रॉबैक इज द क्वालिटी इज़ वेरी लो एंड द सेकंड थिंग इज़ वेरी नॉइजी एंड देयर फॉन्ट, जो भी हमारा स्टाइल होता है करेक्टर, वो मोस्टली जितने मेरे डॉट मैट्रिक प्रिंटर है ना, सभी के सेम ही होता है। सो द नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर। They print one page at a time. The laser printer refer as a page printer. The laser printer are page printer which print one page at a time. The main component of laser printer are laser beam source. A laser printer provide high quality of text and image for personal computer. They can print a different type of style and size, but they are more expensive as compared to impact printer. So we have some advantages: very high speed and low noise, low maintenance cost or low maintenance requirement, a very high quality output, good graphics, support multiple fonts and different size and color printing possible. But the disadvantage is very expensive. The laser printers are expensive as compared to inkjet print, or as compared to dot metric printer or impact printer. The next is inkjet printer. The inkjet printer print a character by spraying small drops of ink on the paper. An inkjet printer is a printer that places extremely small dropout of ink on the paper to create image. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये इंक को क्या करती है? स्प्रे करती है। जो भी मेरे पास इंक होगी, तो जैसे जैसे मेरे पेपर के ऊपर इंक स्प्रे होती जाती है, और वो चीज़ जो उस चीज़ को क्या करता है? बनाता जाता है। जो भी इमेज बनानी है, जो भी चीज़ बनानी, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सो these inkjet printer are mostly used in text and graphics. They are cheapy, or they are not costly, they are and not expensive as compared to laser printer. They are also smaller in size than laser printer, so it take less space. The main disadvantage is the speed of the inkjet printer. The speed of inkjet printer is very slow as compared to other impact and non-impact printer. The image quality is lower than other printer. Expensive to run a new. Every time you need a new cartridge, and buy a cartridge is not a easy job. So the next question is, what is difference? Because as we know that we are doing revision, so there is no need to, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, लेकिन मैं डिटेल में इस चीज़ को नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में हम अपने सेशन में कर चुके हैं। अभी हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं कि एक चीज़ को मैं दोबारा से ब्रीफली से ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये चीज़ होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइक आई हैव टोल्ड यू नाउ कि प्रीवियस क्लासेस कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? सो द मेन डिफरेंस इज, in case of impact printer, the print on paper by striking mechanism, and in the non-impact printer there is no striking mechanism. In impact printer are not in color, they are always in black and white, but the non-impactor are both. They can be print color as well as black and white. They are impact printer are less expensive, low speed, or there is a high noise. But in case of non-impact printer, they are more expensive than impact printer. They are fast and there is no noise while they printing the documents. So these are our topics for today. These are our input and output devices. So another one more device is speaker. A speaker is an output device. It receives audio input and produce sound as an output. A sound लाइक स्पीकर का क्या होता है कि जो भी उसके अंदर आवाज़ होती है उस आवाज़ को मुझे सुनाना है, लेकिन कंसेप्ट ये आता है, जो मेन कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट इज
how to convert digital sound to analog digital format to analog format. So we use a device called sound card that is used to convert the digital signal to analog signal or analog signal to digital signal. So with the help of this device we can analog signal can produce output by the speaker. So this is our today lecture. So if you have any problem you can contact me. So thanks for today, see you next lecture.